Hello everyone, good morning. In last videos we have discussed about the calculation of consumption of goods and how we can calculate the cost of goods to be debited to income and expenditure accounts. How many types of goods may be in the organization? Suppose for a sports club, sports materials are the goods, stationeries for the offices, etc. etc. And we have also discussed in the last videos how we can prepare income and expenditure account with the help of receipt and debit account. Now we are going to discuss a full question from P.S. Gravwal that how we can calculate, how we can prepare income and expenditure account, and in that so many items are there. They are like calculation of subscription maybe, calculation of cost of consumption maybe, etc. etc. And how we can prepare balance sheet, closing balance sheet, and before closing balance sheet, what is the importance of opening balance sheet? Why opening balance sheet is prepared? Opening balance sheet is prepared just to know the capital fund of the organization, etc. etc. Now see the question number 51. Following is the receipt and payments account of Bharti Club for the year ended 31st March 2019. Please see the book. And we have a receipt and payment account and additional information also. First see the subscription 70,500 is given. This 70,500 is given in receipt side. What does it mean? This 70,500 is the subscription received during the year. So now we see subscription received during the year. How much? 70,500. But some additional informations are also there regarding subscription. Now please see the additional information. We have two columns. 31st March 2018 and 31st March 2019. 31st March 2018, the items are given, that is beginning information. Suppose on 31st March 2019, advance subscription is given, outstanding subscription is given, books is given, 9% investment is given. It means these informations are related with the previous year. Please see, suppose advance subscription are given for the last year. It means this is the advance subscription at the beginning, so this is current year's income. Outstanding subscription at the beginning, this is last year income, so must we have to deduct it from the balances. Books we have, it is assets, 9% investment, it is also assets. And again we have 31st March 2019, advance subscription at the end, it is deducted. Outstanding subscription at the end, it is deducted. Books to be shown in the asset side, 9% investment to be shown in the asset side. So कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया? फर्स्ट दिस कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, हम लोग इसका कैलकुलेशन हम अलग भी एक वर्किंग नोट में कर सकते हैं. सीधे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कर करके सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मतलब जो ये सेट आपने इसमें तैयार किया उसका आप वर्किंग नोट करके वी कैन राइट डायरेक्टली बाय सब्सक्रिप्शन 69,900. बट हमने उस कैलकुलेशन को इसी में कर रहा. देखो by subscription received 70,500. This information is given in your receipt and payment account. And again, first we just consider the beginning information, and beginning information is given in the column of 31st March 2019. Advance subscription at the beginning. This is current year's income. We have received previous year this amount. We have received received previous year, but it is the income for current year. So we have added advance subscription beginning, right? And outstanding subscription beginning, this is the income of last year, and we have received this year. So we have deducted the outstanding subscription beginning to find out the balances. तो ये आपका एडवांस बिगिनिंग का इंफॉर्मेशन था. एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस का मतलब मैंने लास्ट वीडियो से बताया था, एडवांस मींस हमेशा आगे के पीरियड, नेक्स्ट पीरियड के लिए होता है. एंड आउटस्टैंडिंग आर रिलेटेड विद द पास्ट पीरियड. तो हम लोग को लास्ट में लास्ट ईयर 2018 तक हम लोग को एडवांस मिला. दैट इनकम इज रिलेटेड विद द करंट ईयर, सो इट मस्ट बी एडेड टू फाइंड आउट द कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम and outstanding subscription at the beginning. It means this information, this income is related with the previous year, but we have received this year, so we have deducted from the total balances to find out the subscription income. Now please see the end information, and in end information is given, my dear, on 31st March 2019 column. Now please see एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने रिसीव किया ऑन 31st ड्यूरिंग द ईयर
on 31st March 2019 3500. Obviously this income is related with the next year, but we have received current year. So मैंने क्या किया, इस एडवांस सब्सक्रिप्शन इनको मैंने माइनस कर दिया। ये देखो ये सब माइनस में है, ये सब माइनस में, जो ब्रैकेट में है वो माइनस में है, राइट। अच्छा अब इसके बाद फिर से क्या दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को मैंने प्लस कर दिया। क्यों? एज पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट, जो हमारा इनकम बाकी रह गया, वी हैव अर्न्ड, ऑर्गेनाइजेशन हैव अर्न्ड but not yet received, so this is current year income, so it must be added and again it is to be shown in the balance sheet section. तो ये कैलकुलेशन था आपका, एक कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। इसको आप इस सेट को आप वर्किंग नोट में भी कर सकते थे या ऐसे भी आप दिखला सकते थे। वर्किंग नोट में भी करेंगे तो ठीक होगा, ठीक है, ये आपका फ्रेश रहेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी रिसिप्ट साइड में दिए हुए इंफॉर्मेशन, उसमें हम लोग को दो चीज ढूंढना है। वी हैव टू सर्च टू थिंग्स, नंबर वन इज कैपिटल रिसिप्ट एंड नंबर टू इज रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड, राइट, एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर टू बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नाउ वी हैव डोनेशन, अदर आइटम इज डोनेशंस। डोनेशंस जैसा कि हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशंस, जनरल डोनेशंस एंड स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशंस आर द रेवेन्यू इनकम, whereas special donation and specific donation like donations for building, donations for pavilion, donations for prize fund, etc., that is liability. So these donations are general donation, so this is revenue income. तो मैंने donations को revenue income में डाल दिया। Now please see, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज गिवन 2000। इसके लिए एक आपको हिंट दिया हुआ है। हम लोगों ने 11th क्लास में हिडन एडजस्टमेंट सीखा था, और हिडन एडजस्टमेंट के अनुसार देखोगे लास्ट ईयर से मेरे पास 9% इन्वेस्टमेंट 25,000 और 9% इन्वेस्टमेंट 25,000 का अगर आप 9% निकालते हो तो टोटल आपका इनकम 2250 बनता है। बट वी हैव रिसीव्ड इन द रिसिप्ट साइड ओनली 2000। So out of 2250, it means organization has earned, organization has accrued how much? 2250, but received only 2000. So as per accrual concept, 250, which is remaining amount, is also the income of organization. So हम लोगों ने इसको प्लस कर दिया, and obviously ये पैसा भी मिलना हम लोगों को बाकी है, तो इसको बाद में क्या करोगे, बैलेंस शीट के जो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे उसको इस साइड में दिखाओगे। क्लियर है, इस साइड का हो गया आपका। नाउ प्लीज सी एक्सपेंडिचर साइड, रिसिप्ट साइड इज ओवर, एक्सपेंडिचर। पेमेंट साइड, वी हैव पेमेंट साइड, एंड इन पेमेंट साइड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेमेंट। नंबर वन रेवेन्यू पेमेंट, जिसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो, एंड नंबर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पेमेंट। व्हाट इज कैपिटल पेमेंट? When an organization acquires any fixed assets like books, land and building, furniture, office equipments, etc., that is capital payment, that is capital expenditure. Like investment भी आपका है, so इसको हम लोग कभी भी पेमेंट साइड में नहीं दिखाएंगे, इसको हम लोग बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाएंगे। लेकिन बाकी जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको तो दिखाना पड़ेगा। Why revenue expenditure will paid? Just to earn the revenue इनकम। जब तक आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस पेमेंट करते रहोगे तब तक रेवेन्यू आपका अर्न होता रहेगा। नाउ लेट्स सी, सैलरीज इज गिवन 25,000 विदाउट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। सो मैंने सैलरीज 25,000 यहाँ पे 25,000 लिख दिया। अगेन वी हैव ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000 हो गया। स्टेशनरी, देयर मे बी एडजस्टमेंट इन द स्टेशनरी। वी कैन कैलकुलेट the consumption of stationery when opening stock of stationery, closing stock of stationery, etc. is given. Then we can calculate consumption of stationery. In this question, stationery is given only rupees 3,000. It means organization has purchased stationery rupees 3,000 during the year. And as per this question, no opening balance of stationery are there, no closing stock of stationery are there. It means organization ने जितना परचेज किया 3,000 का स्टेशनरी पूरा का पूरा कंज्यूम्ड हो गया। तो आप यहाँ पर सीधे टू स्टेशनरी 3,000 लिख दो। टू कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी नहीं लिखना चाहिए,
कंजम्पशन आप कब लिखोगे? व्हेन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, देन वी कैन राइट कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी. सो दिस इज कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी. सही है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. द रेंट 32,000. Again there may be additional information. Rent outstanding at the beginning, rent outstanding at the end, prepaid rent, I will advance rent at the beginning, at the end, वैसा रहा था. तो फिर हम लोग लास्ट डिस्कशन के अनुसार हम लोग एडजस्टमेंट करते और फिर एनुअल रेंटल एक्सपेंसेस निकालते. दैट्स ऑल. इसके अलावा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं है. फिर हमने क्रेडिट को और डेबिट को अलग टोटल किया और क्रेडिट साइड आपको एक्सीड किया किसमें से? 31,150 से. और यही मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आंसर होगा. देखो क्या लिखा हुआ मैंने, सरप्लस. हाउ वी कैन से देयर इज सरप्लस व्हेन रेवेन्यू इनकम एक्सीड्स ओवर द एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस. एंड सरप्लस इज द surplus exceeds our the capital fund balances. No members will pay the capital amount because मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी अगर इकोनॉमिक यूनिट है, कोई भी इकोनॉमिक मैन है, वो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कहाँ करता है? जस्ट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग. और यहाँ पर कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं है. अगर मैं इकोनॉमिक यूनिट हूँ, मैं एक इकोनॉमिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर है, मेरा प्रॉफिट मेकिंग मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा मेरा ये वर्क हो गया, मैं समाज का सेवा करूंगा, सोसाइटी का सेवा करूंगा. अभी जैसे कोविड-19 से हमारा कंट्री सफर कर रहा है, पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है. इसमें बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने आए हैं खुल करके और वे समाज का सेवा कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि मैं अपना कैपिटल ही इंट्रोड्यूस कर दूं. जो मेरी अर्निंग है उसका मैं कुछ पार्ट वहां पे दूंगा और जो मेरा सरप्लस होगा वही एक्यूमुलेट करने के बाद जो सरप्लस का एक्यूमुलेशन करेंगे, दैट बिकम द कैपिटल फंड ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज 31,150 इज आवर सरप्लस, जो हमारा कैपिटल फंड होगा उसमें जाकर के ऐड होगा. अब कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे? कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह, ये चीज आपको देखना पड़ेगा. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 1 साल पुराना होगा तो उसके पास एसेट्स भी होगा, लायबिलिटीज भी होगा. और इस तरीके से करके एसेट्स लायबिलिटी माइनस लायबिलिटीज करके हम लोग कैपिटल फंड निकाल सकते हैं. यही मैंने कोशिश किया हुआ है कि इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी बनाना है और ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 1 साल पुराना तो जरूर दिख रहा है. कैसे पता करेंगे? रिसिप्ट साइड में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 10,500. रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस होने का ही मतलब हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 1 साल पुराना है. और लास्ट ईयर का अगर मेरे पास कैश बैलेंस 10,500 है तो लास्ट ईयर का और एसेट्स और लायबिलिटीज ढूंढेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे लास्ट ईयर का. जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट था वही करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जिसको मैंने ये बनाने का कोशिश किया. एंड वी कैन से that preparation of opening balance is required only for the calculation of capital fund. How we can calculate capital fund? Assets of the last year, assets of the previous year minus liabilities of the previous year, and balancing figure is known as the capital fund. तो लास्ट ईयर मेरे पास देखोगे, लास्ट ईयर का कॉलम कैसे ढूंढोगे? तुम्हारे पास सबसे पहला इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर का क्या मिल जाता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. And opening balance of cash we have 10,500 and we have written 10,500. और 31st March 2018 के कॉलम में जितने भी है सब लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है. इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा एसेट्स है, कौन सा लायबिलिटीज है. ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर 2000 है, जो मेरी लायबिलिटी था लास्ट ईयर, मैंने लायबिलिटी साइड लिखा है. एडवांस इनकम इज ऑलवेज लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, मेंबर्स क्या मेरा 3400 बाकी था, 3400 मैंने एसेट साइड में दिखा दिया. लास्ट ईयर एसेट्स मेरे पास 8000 का था. इस साल मैंने बुक्स भी परचेज किया हुआ 4000. करंट ईयर में बुक्स आपके पास 12000 का हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास 8000 का है तो मैंने बुक्स भी 8000 लिख दिया और लास्ट ईयर का 9% इन्वेस्टमेंट भी था. टोटल एसेट्स मेरे पास 46,900 हो गया. एसेट्स माइनस ये लायबिलिटी इसका टू कैपिटल फंड 44,900 is the capital fund of the previous year. ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया. ये रिक्वायर्ड क्या होगा, इसका यूज क्या है? जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तब इसको हम लोग इसमें यूज करेंगे. इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसके बाद हम
ओपनिंग बैलेंस शीट आपका हो गया। फिर मैं इसके बाद इसको मिटा करके क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा। सो वी हैव प्रिपेयर्ड क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड करते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट को देख करके बनाया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया। व्हाई वी प्रिपेयर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट? टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड वी प्रिपेयर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट। मेरे पास पहले से क्या क्या चीज था? कैश, जो कैश चेंज हो सकता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, इस साल सब्सक्रिप्शन भी चेंज हो सकता है। बुक्स मेरे पास था 8000, मैंने और 4000 का बुक्स परचेज किया, तो मेरे पास अब बुक्स नया हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखलाएंगे। 9% इन्वेस्टमेंट था, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, ये सब सारी बातें। और ये कैपिटल फंड एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का इनकम में आ गया, इस साल एडवांस सब्सक्रिप्शन किया। तो मैंने ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, this cash we have find out from the receipt and payment account. This is the closing balance of receipt and payment account, that is rupees 30,000। ये 9% इन्वेस्टमेंट जितना पहले था, अभी भी इसका 9% इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने मार्केट में सेल नहीं करी, तो ये मेरे पास 25,000 है। अभी भी 250 मेरे पास शेयर होल्डर्स के यहाँ से, आई मीन कंपनी के यहाँ से लेना बाकी है। मैंने एसेट साइड में दिखाया जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था, बुक्स था, ये सारे के सारे मैंने ढूंढे, कहाँ से सर्च किए। जो 31st March 2019 का कॉलम है, ये क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम है। तो मैंने बुक्स को डाला। बुक्स में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पहले से 8000 का था, ये देखो ओपनिंग बैलेंस हो गया 8000, और ये परचेज और बुक्स पेमेंट साइड में दिया हुआ है, मैंने पेमेंट साइड में ऐड कर दिया 12,000। अब कोई एसेट्स आपके पास नहीं है। लाइब्रेरी साइड में कैपिटल फंड 44,900, we have find out from the opening balance sheet 44,900, and surplus increases the capital fund। अगर डेफिसिट आता तो कैपिटल फंड मेरा डिक्रीज हो जाता। एंड वी हैव एडेड लाइव मेंबरशिप फी, दिस इज इंपॉर्टेंट। लाइव मेंबरशिप फी हम लोग ने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया था कि जब हम लोग फंड को, जब हम लोग लोन को कंप्लीट ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी, कैपिटल फंड, लेगेसी, दीज ऑल आर द अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, बट डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पेवेलियन फंड, प्राइज फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड फंड। तो जितने भी अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं उसको हम एक जगह कर देते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच ऑर्गेनाइजेशन हैज परचेज्ड unrestricted fund just for the use for the purpose। And again we have advance subscription which is to be shown in the 31st March 2019 column। ये मेरे पास 3500 है। इस तरीके से करके दोनों साइड में 71,550 71,550 हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। तो आपने इस चैप्टर में स्मॉल क्वेश्चंस भी देखा, फिर असाइनमेंट भी आपको दिया हुआ है। असाइनमेंट को कंप्लीट करके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप पूछोगे कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट करके, सारे डिटेल्स आपके पास है। और इसमें स्मॉल क्वेश्चंस भी आपने देखा। स्मॉल क्वेश्चंस में क्या था? कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ अदर इनकम्स लाइक लोकस रेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, preparation of receipts and payment account, preparation of income and expenditure account with the help of receipt and payment account, and full question जो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आएगा, ये preparation of income and expenditure account, opening balance sheet and closing balance sheet। क्लियर है? इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सब आप बनाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब आपका कोई भी आइटम्स बाकी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम होगा पूछोगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।